Hello friend, I Tushar Tua, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to our official YouTube channel. Here in this video, we will see what is conjugated beam method and how it is to use. So let's get started. Conjugated beam method. Conjugated beam method is modified from moment area method and may be conveniently used for find out the slope and deflection of beam. Change of slope support is conjugated beam, actual beam or conjugated beam. फर्स्ट फिक्स बीम, एक्चुअल बीम है हमारा वो फिक्स है और हम कंजुगेटेड बीम में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम फोर्थ एंड है उसको हम फ्री रखेंगे, ठीक है। तो फिक्स एंड एट द फिक्स एंड of the actual beam, slope and deflection both are zero. The shear and moment in the corresponding conjugated beam must be zero at free end only, complete with such a condition. A fixed end of an actual beam become a free end in conjugated beam. Next, hinge और रोलर एंड। एक्चुअल बीम है वो हिंज दे रखा है और कंजुगेटेड बीम में एक्चुअल जो कंजुगेटेड बीम है उसको ही हिंज ही रखेंगे और रोलर है एक्चुअल बीम तो कंजुगेटेड में एक्चुअल हिंज ही रखेंगे, ठीक है। तो हिंज और रोलर एट द हिंज और रोलर एंड ऑफ एक्चुअल बीम देयर इज रोटेशन बट no deflection. In a corresponding conjugated beam, at this end there should be shear but no moment. Hinge or roller end of conjugated beam completely with such a condition. Hinge or roller end of an actual beam, the remaining hinge or roller in conjugated beam. नेक्स्ट फ्री एंड, एक्चुअल बीम में वो फ्री एंड है और कंजुगेटेड बीम में हम उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पोर्ट की हम बात कर रहे हैं अभी। एट द फ्री एंड ऑफ एक्चुअल बीम देयर एग्जिस्ट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बोथ। इन corresponding conjugated beam at this end there should be shear and moment both. Fixed end only can completely with such condition. Free end of actual beam become a fixed end in conjugated beam. Next, internal hinge, जो हमें यहाँ internal hinge दिया है एक्चुअल बीम में और कंजुगेटेड बीम में वो हो जाएगा इंटरनल रोलर। At an internal hinge of actual beam, there exists slope and deflection both. Simply supported would be required. An internal hinge of actual beam become a simply supported in conjugated beam. Next, internal roller support. So internal hinge. Internal support in actual beam permit rotation but does not deflection.
There is shear force on both sides, internal support, which should be equal to opposite in nature. Slope is continuous over support, but at the end support there is shear force on one side only. Hence, there is slope on one side only. An internal support actual beam become internal hinge in conjugated beam. Next, let me explain that with the help of diagram. Here I am considering a beam, cantilever beam. For example, find out theta B, theta C, YB, YC for the beam shown in figure. Moment of inertia I is equal to 3 into 10 raised to 8 mm raised to 4. Modulus of elasticity E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Cantilever beam A and fix A to B distance 3 meter. 3 meter पे 30 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल दे रखा है. बी पॉइंट पे 60 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड दे रखा है और सी पॉइंट पे 40 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड दे रखा है. यहाँ पे टोटल स्पान 6 मीटर है और यहाँ पे 3 आई दे रखा है, यहाँ पे 2 आई दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है कंजुगेटेड बीम मेथड से स्लोप और डिफ्लेक्शन. थीटा बी मतलब स्लोप एट बी, थीटा सी मतलब स्लोप एट सी, वाई बी डिफ्लेक्शन एट बी, वाई सी डिफ्लेक्शन एट सी. फर्स्ट स्टेप नंबर 1, find the all point moment due to point load. यहाँ पे हमें पॉइंट लोड भी दे रखा है और यूडीएल भी दे रखा है, तो हमें दोनों की मोमेंट अलग अलग फाइंड आउट करनी है. तो ड्यू टू पॉइंट लोड कैंटिलीवर बीम है, मोमेंट हो गई क्लॉकवाइज, लेकिन कैंटिलीवर है इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज माइनस नेगेटिव मोमेंट लेंगे. mc इज इक्वल टू 0, फ्री एंड है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0. mb फोर्स 40 किलो न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, तो माइनस 40 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 120. ma पे मोमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो माइनस 40 इंटू 6, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस 60 इंटू 3. ठीक है, यहाँ पे मोमेंट मिलेगी हमें 420, यहाँ पे 420 किलो न्यूटन इंटू मीटर. ओके, अब फाइंड ऑल पॉइंट मोमेंट ड्यू टू यूडीएल. हम यूडीएल के हिसाब से अब मोमेंट फाइंड आउट करेंगे. तो सी पॉइंट पे यूडीएल नहीं है 0, बी पॉइंट पे यहाँ पे भी यूडीएल नहीं है 0, ए पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ यूडीएल की ही मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे. mc इज इक्वल टू 0, फ्री एंड पे mb इज इक्वल टू 0, या बी और सी के बीच में कोई यूडीएल नहीं है. ma minus 30 into 3 into 1.5 is equal to minus 135 kilo Newton into meter. Okay. Next point. Next. अब हमने जो मोमेंट फाइंड आउट किया है उसका हम एम डायग्राम मतलब कि मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एम बाई ई डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास बीम दे रखा है कैंटिलीवर बीम 6 मीटर स्पान है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट.
ए पॉइंट पे 420 किलो न्यूटन इंटू मोमेंट आई है नेगेटिव, तो हम जो बेस लाइन है बीम है उसके बिलो ड्रॉ करेंगे, और पॉजिटिव तो बेस बीम के अपवर्ड साइड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ए पॉइंट पे 420, बी पॉइंट पे 120 ड्यू टू पॉइंट लोड के हिसाब से मोमेंट जो मिली है, और सी पॉइंट पे 0। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पॉइंट लोड हो और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो इंक्लाइन नहीं, तो 120 420 120 और सी पे 0। तो M1 डायग्राम फॉर पॉइंट लोड और M2 डायग्राम फॉर यूडीएल। तो यूडीएल के हिसाब से सी पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे 0 और ए पॉइंट पे 135, तो ये 135 और यूडीएल है तो पैराबोला लाइन है। अब हमें एम डायग्राम से एम बाई ई आई डायग्राम, यहाँ पे हम बोलेंगे कंजुगेटेड बीम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एम बाई ई आई डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 3i है, उसकी इफेक्ट यहाँ पे ए पे रहेगी और बी पे रहेगी। यहाँ पे 2i है, इसकी इफेक्ट बी पे रहेगी और सी पे रहेगी। ठीक है, हम पहला यहाँ पे बात करते हैं 3i की। तो पॉइंट लोड एम डायग्राम है, M1 डायग्राम ड्यू टू पॉइंट लोड, तो 420 डिवाइड बाय 3ei, 420 डिवाइड बाय 3ei, तो हमें आंसर मिलेगा 140। तो मैंने यहाँ पे लिख के 140 डिवाइड बाय ई है। ठीक है, ये यहाँ का हो गया। अब बी पॉइंट पे 120 किलो न्यूटन इंटू मीटर की मोमेंट है, उसके डिवाइड बाय 3i करेंगे तो हमें मिलेगा 40 डिवाइड बाय ई है। तो यहाँ से 40, ये दो पॉइंट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे 2i की। जो यहाँ पे 2i है उसकी इफेक्ट बी पे रहेगी और सी पे रहेगी। तो बी पे मोमेंट है 120 डिवाइड बाय 2 तो 60, तो यहाँ 40 यहाँ 60, तो टोटल हो गया 60। तो 60 डिवाइड बाय ये सी पॉइंट पे 0। सेम यूडीएल के हिसाब से जो मोमेंट मिली है हमें, तो 135 डिवाइड बाय 3 तो 45 डिवाइड बाय ई है। और जो हमें डायग्राम मिला उसका एरिया और सीधी का डिस्टेंस जिसका जानते हैं, नॉलेज है हमें, उसी तरह से हम उसका पार्टीशन करेंगे। तो ये 40 का स्क्वायर हो गया, तो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो हमें कंजुगेटेड बीम डायग्राम में बोला है कि फिक्स एंड है उसे हम फ्री करेंगे, तो ये फ्री हो गया, और जहाँ फ्री एंड है हम उसे फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो कंजुगेटेड बीम ड्यू टू पॉइंट लोड ड्यू टू यूडीएल। अब हमें फाइंड आउट करना है थीटा सी, स्लोप एट सी। सी पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करना है, तो थीटा सी इज इक्वल टू स्लोप एट सी डैश इज इक्वल टू शियर फोर्स एट सी डैश। शियर फोर्स का मतलब है कि जो सेक्शन जो डायग्राम कंजुगेटेड बीम डायग्राम है उसका अलग अलग पोर्शन का हम एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है 1, 2 और 3 और 4, इसका एरिया इसका प्लस इसका प्लस इसका। ठीक है, तो यहाँ ट्राइंगल है 1 4, तो उसका एरिया हो जाएगा, टोटल है 140, इसमें से हमने 40 यहाँ पे ले लिया, तो टोटल कितना बचा 100। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइड बाई ये, दूसरा का हो जाएगा 3 इंटू 40 डिवाइड बाई ये, इसका हो जाएगा 1/2 60 डिवाइड बाई ये इंटू 3, और ये पैराबोला है तो उसका एरिया हो जाएगा 1/3 इंटू 3 इंटू 40 डिवाइड बाई ये। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइड बाई ये पोर्शन 1 पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 3 इंटू 40 डिवाइड बाई ये प्लस नेक्स्ट थर्ड पार्ट 1/2 इंटू 3 इंटू 60 डिवाइड बाई ये प्लस पैराबोलिक जो है यूडीएल के हिसाब से 1/3 इंटू 3 इंटू 40 डिवाइड बाई ये। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई ये प्लस 120 डिवाइड बाई ये प्लस 90 डिवाइड बाई ये प्लस 45 डिवाइड बाई ये।
इज इक्वल टू टोटल हो गया 405 डिवाइड बाई ई है, ये वैल्यू हमें स्लोप फाइंड करना है तो मिलेगी किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 405 इंटू 10⁻³ किलो का हो गया 10⁻³ मीटर स्क्वायर का हो गया 10⁻6 हमने कन्वर्ट किया न्यूटन इंटू mm स्क्वायर और हमें EI की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻5 इंटू 3 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर न्यूटन इंटू mm स्क्वायर कैंसिल तो आंसर आएगा थीटा c इज इक्वल टू 6.75 इंटू 10⁻³ रेडियन। अब हमें थीटा b पे फाइंड आउट करना है स्लोप। तो जो b तक का डायग्राम ही देखना है हमें तो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीन पोर्शन का एरिया हम लेंगे। थीटा b इज इक्वल टू स्लोप एट b इज इक्वल टू शेयर cos at b dash is equal to area of part 1 1/2 into 3 into 100 divided by E plus 40 divided by E into 3 plus 1/3 into 3 45 divided by E टोटल उसका हो गया 315 divided by EI किलो न्यूटन into मीटर स्क्वायर is equal to 315 into 10⁻³ into 10⁻6 divided by 2 into 10⁻5 into 3 into 10⁻8 Newton per mm square is equal to 5.25 into 10⁻³ रेडियन। थीटा बी और थीटा सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे वाई सी डिफ्लेक्शन एट सी और डिफ्लेक्शन एट बी। जो स्लोप फाइंड आउट किया है हमने तो उसमें हमने एरिया लिया है और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते तो एरिया इंटू सी से डिस्टेंस लेंगे तो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो ए सी तक पूरा डायग्राम कंजुगेटेड बीम का लिखना है तो वाई सी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट सी इज इक्वल टू बी एम एट सी डैश इज इक्वल टू 1/2 into 300 डिवाइड बाई ई एल इंटू एरिया हो गया पहला फर्स्ट पार्ट का उसका सी से डिस्टेंस 3 प्लस 2/3 into 3 प्लस सेकंड पार्ट का एरिया 3 into 40 डिवाइड बाई ए इंटू सीजी का डिस्टेंस 3 प्लस 1.5 थर्ड पार्ट का एरिया 1/2 into 3 into 60 डिवाइड बाई ए इंटू 2/3 into 3 प्लस यूडीएल के हिसाब से जो डायग्राम बन रहा है उसका एरिया 1/3 into 3 into 45 डिवाइड बाई ए है इंटू 3/4 into 3 सीजी से डिस्टेंस प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस तो ये टोटल हो गया is equal to 1706.25 डिवाइड बाई ये वैल्यू यहाँ पे आएगी किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जो स्लोप है उसमें मिलेगी हमें किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगी हमें किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब। तो 1706.25 इंटू किलो का 10⁻³ और मीटर क्यूब का हम mm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 10⁻9 वैल्यू यहाँ पे मिलेगी न्यूटन इंटू mm क्यूब डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻5 इंटू 3 इंटू 10⁻8 न्यूटन इंटू mm स्क्वायर कैंसिल YC is equal to 28.44 mm. YB डिफ्लेक्शन एट B। अब हमें B तक का ही डायग्राम देखना है और B तक का ही CG से डिस्टेंस लेना है। तो B ending moment at B dash is equal to 1/2 into 3 into 100 divided by ये फर्स्ट पार्ट का एरिया लिया है into 2/3 into 3 CG का डिस्टेंस प्लस सेकंड पार्ट का एरिया 3 into 40 डिवाइड बाई ये एरिया लिया है into उसका जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका हाफ डिस्टेंस 1/5 प्लस अब हमें यूडीएल के हिसाब से जो मोमेंट मिला है डायग्राम मिला है उसका एरिया 1/3 into 3 into 45 डिवाइड बाई ये into 3/4 into 3 CG से डिस्टेंस। तो यहाँ पे is equal to 300 डिवाइड बाई ए प्लस 180 डिवाइड बाई ए प्लस 101.25 डिवाइड बाई ए टोटल हो गया 581.25 डिवाइड बाई ए किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब। 581.25 इंटू 10⁻³ किलो का और mm मीटर क्यूब का उससे mm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 10⁻9
डिवाइड बाई ई की वैल्यू है 2 into 10 raised to 5 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू है 3 into 10 raised to 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइनल आंसर YB इक्वल टू 6.98 mm। Now we are concluding our session. If you any further question or want additional information, please feel free by call or email. Thank you. Thank you very much.